Assalamu alaikum and a very good evening, everyone. A warm welcome to all of you on behalf of IEEE Ziauddin University Student Branch. We're delighted to have you join us for another exciting session of Hack the Future 2026. Thank you for being here with us today. It's wonderful to see so many eager participants joining this session. Artificial intelligence is no longer just a glimpse into the future. It's becoming part of how we study, work, create, and solve everyday problems. As these technologies continue to evolve, learning how to use them effectively has become an important skill for students and professionals. Today's webinar is all about exploring cloud AI through a practical, hands on experience that will help you better understand its capabilities and how it can support your daily tasks. With that, let's begin today's session. I'd, ni- I'd now like to announce the speaker for today's webinar, where the topic is Intro to Cloud AI Practical Hands on Session. We're delighted to have Ms. Zainab Ali, Marketing and Growth Trainee at AI Data Yard, joining us in this evening. Zainab is passionate about making AI easier to understand and more accessible for everyone. We are honored to have you with us and are looking forward to learning from your experience. Zainab, thank you for joining us. The stage is all yours. Thank you so much for the warm invitation, Hamna. And once again, I would like to introduce myself. My name is Zainab, and I work at AI Data Yard. And today we are going to be talking about AI fluency, and we are going to have a practical hands-on session as well after we're done with the presentation. So let me share the slides that I have made. Um, so the topic for today's discussion: AI fluency, working smarter um, with AI, basically. So the skills you need to collaborate effectively with AI. And in this presentation, we're going to be talking in the context of Claude. But यहाँ पर everything that we're going to talk about, this can be applied to ChatGPT as well, और जो दूसरे large language models है उन पे भी ये theories इस्तेमाल हो सकते हैं. Now, पहले हम बात करेंगे कि AI में what is generative AI? AI in simple terms, let's first of all look at the presentation. Generative AI is it creates new content such as text, images, code, and audio. And पुराने traditional AI में क्या होता था कि it normally just like predicted or detected or classified information. It couldn't generate new content. It couldn't generate text or images or code or audio like that. But now what we have done is कि like हमारे पास काफी advanced AI आ चुके हैं जिसमें we don't only make predictions, we can also generate new content on the basis of older data, on the basis of data that was there to that the model was trained on. Basically जो Claude है, ChatGPT है, ये लोग large language models है और ये लोग trained हुए हैं on large amount of data. And उसी के बेसिस पे ट्रेडिशनल एआई में उसी लार्ज डेटा पे ये लोग प्रिडिक्शन करते थे. जैसे कि जैसे कि अगर नेटफ्लिक्स कर ले या फिर स्पॉटिफाई कर ले, यू गाइस माइट हैव नोटिस कि वो ना इवन यूट्यूब पे भी वो रिकमेंडेशंस आते हैं कि हाँ यू शुड वॉच दिस वीडियो और यू शुड लिसन टू दिस सॉन्ग और दिस वॉच दिस शो और मूवी, राइट. ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स है जो कि ट्रेडिशनल एआई ये लोग ये मशीन लर्निंग की कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल किए ऑन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिस पे रिकमेंडेशंस देते हैं बेस्ड ऑन योर डेटा बेसिकली. लेकिन अब हमारे पास क्या आ चुका है कि हमारे पास क्लॉड है, हमारे पास चैट जीपीटी है, ये अब जनरेटिव एआई है. ये लोग उसी लार्ज डेटा और उसी मशीन लर्निंग टेक्निक्स के बेसिस पे देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग इन मशीन लर्निंग. ये थोड़ी सी वो जनरेटिव मतलब कि जनरेटिव एआई की तरफ आती है. उसी पुराने डेटा के बेसिस पे ये लोग ना नया डेटा जनरेट करते हैं. क्लॉड जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है जैसे क्लॉड और चैट जीपीटी है, ये लोग ना what they do is that के based on the data that it has been trained on, it predicts the next word that you're going to say. For example, I like apples. मतलब कि मैंने बस सिर्फ I like लिख दिया ना,
So it is just predicting the next word you're probably going to say is apples on the basis of data that it has been given to, like, generate this new content. So this is what we mean by generative AI. It takes that data, it does whatever it needs to do, and it predicts what you're going to say next, either in image or audio or text. See, हाउ डज AI वर्क, वही जो सारी मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हुए है, इसके 3 पिलर्स है: बेटर एल्गोरिदम्स, मैसिव ट्रेनिंग डेटा एंड पावरफुल कंप्यूटिंग, जीपीयूज वगैरह। जो बड़े डेटा सेंटर्स है उसमें बेसिकली डेटा ही स्टोर हुआ है और उसी डेटा पे इन मॉडल्स की ट्रेनिंग होती है। प्री ट्रेनिंग है, फिर फाइन ट्यूनिंग है, फिर उसके बाद यूजर प्रॉम्प्ट मतलब कि जो चैट बॉक्स में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, उसी बेसिस पे जवाब देना, एआई रिस्पॉन्स जो लिखा हुआ है। So I'm not going to get into too many details, but generally this is what happens in generative AI. कुछ AI के स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ AI के लिमिटेशंस भी है। AI काफ़ी अच्छा है राइटिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कोडिंग में, समराइजिंग में, ट्रांसलेशन में, रिसर्च असिस्टेंट में। लेकिन AI के ना कुछ मसले होते हैं। It sometimes makes up stuff on its own. मतलब कि वो कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ कह देता है जो कि सच नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल hallucination। और ये एआई, if you guys like used ChatGPT during the early time during 2021, तो उसमें इवन जब भी कोई जवाब दो ना, वो ना थोड़ी बहुत चीज़ें ना hallucinate करके देता था कि लाइक कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि ये सच है, जबकि when you go and check this link out, this information is not even present in that document। मतलब कि रिसर्च में आई वुड यूज़ एआई फॉर लाइक रिसर्च पर्पसेस ना, तो मैं जब भी कोई रिसर्च करती थी तो उसमें जब भी मैं वेरीफाई करने की कोशिश करती हूँ फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, एंड आई वुड आस्क यू टू गिव मी द लिंक वेयर यू गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। फॉर वो लिंक मैं चेक करती थी, बाद में पता चलता था कि वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब कि इट्स फॉल्स। दैट इज हेलुसिनेशन। एंड देन वी हैव नॉलेज कट ऑफ। इट हैज़ बिन ट्रेन्ड ऑन डेटा, राइट? तो वो डेटा ना लिमिटेड है, इट डज़ नॉट हैव डेटा फॉर लाइक एवरीथिंग। सो वो इन्फॉर्मेशन, उसके पास हमेशा वो कॉन्टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिसके जिसके लिहाज से ना वो उसी तरीके से आउटपुट दे। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन नॉलेज कट ऑफ। कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट्स, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट्स इसके मतलब कि चैट बॉक्स में जब भी हम इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और जो फाइल्स अपलोड कर रहे होते हैं, वो किसी हद तक ही हम अपलोड कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना शुरू कर दिए तो फिर it's like, you if you guys have like experiences on your own, jitne documents do, jitni information do na, and the longer the chat gets, the equally bad the responses get from chat gpt or Claude. It's like doesn't start giving proper answers, and then you have to open a new chat ke like theek hai फिर से स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोजेक्ट। सो इसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट्स भी होते हैं, जिसका मुराद है कि लाइक यू कैन नॉट गिव all of the information that if you give too much information, it gets oversaturated and does not give good responses। वीक कम्प्लेक्स रीजनिंग, ये पुराने मॉडल्स में होता था, लाइक इवन क्लॉड में भी जब शुरू में आया था, इट हैड लाइक सम कम्प्लेक्स रीजन, मतलब कि रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी, बट लाइक इट्स गेटिंग बेटर नाउ, इट्स गेटिंग बेटर ईच टाइम अ न्यू मॉडल इज इंट्रोड्यूस्ड। सो टेक अवे इसके लाइक एआई पावरफुल है, बट लाइक ह्यूमन जजमेंट इज स्टिल एसेंशियल। मतलब कि 70% काम एआई कर लेगा, लेकिन 30% जो ह्यूमन जजमेंट है वो वाला काम यू स्टिल हैव टू डू नो मैटर व्हाट। इफ अगर हमने ह्यूमन इन लूप ना किया ना, लाइक अगर सारा काम एआई से करे और ह्यूमन उसे करेक्ट करने के लिए नहीं है, और अगर ह्यूमन को नहीं पता कि आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, देन दैट इज probably like really bad। सो एआई फ्लुएंसी फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क एंथ्रोपिक ने इंट्रोड्यूस किया है। इट इज़ द कंपनी बिहाइंड क्लॉड, और ये इस तरह का फ्रेमवर्क है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी में भी, और जो दूसरे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, देयर इज परप्लेक्सिटी, इवन कर्सर भी है, और ये सारे जो दूसरे मॉडल्स है, इनका ये काम है कि इस फ्रेमवर्क में बेसिकली इट इज़ कॉल्ड द 4 Ds, and it basically stands for delegation, description, discernment and diligence। गोल इज़ हमारा हमेशा एज अ ह्यूमन बीइंग नाउ, व्हाटएवर वर्क वी डूइंग, हमारा गोल होना चाहिए कि एआई को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, एथिकली और महफूज हिसाब से कैसे इस्तेमाल करें। तो ये फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है ऑन डूइंग दैट। ways we work with AI, हम फॉर द मल्टीपल रीजंस दैट वी यूज़ एआई, हम चैट जीपीटी को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे? हम ऑटोमेशन के लिए, हम टास्क दे देते कि डू दिस असाइनमेंट, तो वो टास्क एक स्पेसिफिकली दे रहे हैं, तो इट डज दैट टास्क, हम ऑटोमेट करें उस प्रोसेस को।
ऑगमेंटेशन इसके लाइक हम एक चीज़ को प्लान आउट करना चाहते हैं एंड वी हैव दिस बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन विद द चैट बॉक्स कि हाँ ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए एंड देन इट गिव सम सजेशंस और कहते हैं फिर आई एज अ ह्यूमन बीइंग से कि हाँ ये सही है बट दिस इज रॉन्ग वर्क ऑन दिस पार्ट ऑफ इट एंड इट गिव्स मोर सजेशंस एंड देन आई गिव इट मोर आइडियाज मोर लाइक give it more correction कि हाँ इससे बेहतर करो. This is how human and AI is collaborating with each other. And then agency is when AI works independently towards goals. जब अच्छा this is agency is basically कह सकते हैं कि agentic AI. इसे basically इसमें human in loop की ज़रूरत नहीं होती. ये खुद ही task automatically किए जा रहे हैं. हम agency पे focus नहीं करेंगे, हम सिर्फ focus करेंगे automation और augmentation पे. Automation के फिर नीचे और examples भी दिए गए हैं कि automation में email summarization आ सकती है, augmentation में brainstorming ideas and agency में AI agents completing workflows वगैरह वगैरह. Moving on. So what is delegation now, you might ask? Delegation is that के delegation क्या होती है? हम काम दे देते हैं किसी को करने के लिए. वो काम मुझे नहीं करना तो मैं किसी और को कहनी हूँ कि वो काम कर ले. So it decides who does what. क्या काम कौन कर रहा है. So इसके how to best delegate work to AI. इनके 3 पार्ट्स हैं. प्रॉब्लम की अवेयरनेस होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस होनी चाहिए और टास्क डेलीगेशन. सो मसला है कि प्रॉब्लम इस पे ज़रा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? इट इज़ बेसिकली आप पोज़ीशन ए पे हैं बट यू वांट टू गो टू पोज़ीशन बी. पोज़ीशन बी इज़ योर गोल एंड पोज़ीशन ए इज़ योर राइट नाउ सिचुएशन. गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. So अब इसमें हमें प्रॉब्लम अवेयरनेस समझ आ गई. आई एम करंटली एट पोजीशन ए बट आई वांट टू बी एट पोजीशन बी. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम एंड नाउ वी हैव प्लेटफॉर्म अवेयरनेस. हम किस प्लेटफॉर्म को यूज करें टू डेलीगेट दिस टास्क टू गो फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी. हम बिकॉज इट इज़ अ क्लॉड का सेशन वी आर गोइंग टू टेक क्लॉड एज एग्जाम्पल. हम क्लॉड को ले लेंगे. वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ क्लॉड टू फिगर आउट हाउ टू गो फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी. फिर हम क्लैरिफाई करेंगे कि टास्क है क्या. हम ये टास्क डेलीगेशन में आता क्या है. टू identify all of this, we are going to ask some questions from ourselves. We're going to ask, what should I do? इस specific situation में प्रॉब्लम ए से प्रॉब्लम बी में जाने के लिए मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, AI कौन सा काम कर सकता है और कौन सा काम हम दोनों साथ में कर सकते हैं. और इसमें मैं एक एग्जांपल भी प्रोवाइड करती हूँ कि रिमेंबर नॉट रिमेंबर बट लाइक हमारी एक हम whenever we're like applying for jobs, I'm assuming everyone here is a student, and जब भी हम jobs के लिए apply कर रहे होते हैं हम resume को अपना customize करके send करते हैं ना resume, और इस resume को job description के हिसाब से change करके हम resume send करते हैं. Now this is a process that would take me 30-40 minutes before I got my current job, and I was when I graduated and was looking for jobs. This whole process would take me a lot of time. तो वो 30-40 मिनट्स मुझे सेव करने थे. तो मैंने क्या किया कि ठीक है, ये काम मैं क्लॉड को कैसे डेलीगेट कर सकती हूँ. सो आई क्रिएटेड अ होल सिस्टम. उस सिस्टम में मैंने क्या किया कि क्लॉड का एक फीचर है स्किल्स का. इट्स कॉल्ड स्किल्स. इसमें इन लोगों ने ना यू कैन क्रिएट स्किल्स, मतलब कि स्किल में हम एग्जैक्ट टास्क दे सकते हैं. हम एग्जैक्ट एक स्किल क्रिएट होता है जिसमें हमने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए कि दिस इज द गोल, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस और ये सारी इंफॉर्मेशन है. ठीक है. तो now I know what my problem is. My problem is that I want to save my time each time I apply for a job. Like मुझे resume customize करना है for each job that I apply to, and I don't want to spend hours on that. ये मेरी प्रॉब्लम हो गई. प्लेटफॉर्म अवेयरनेस. मुझे क्लॉड का पता है कि क्लॉड में एक फीचर है कॉल्ड स्किल्स. ये काम मेरे लिए सेव कर सकता है, मतलब कि rather than spending 30-40 minutes, it can do that job for me in 5 minutes. ठीक है, मैं बताती हूँ वो कैसे होगा. एंड देन टास्क डेलीगेशन. कौन सा टास्क मैं करी हम दोनों साथ में करें. ठीक है. सो आई विल शेयर माई समथिंग एल्स. एक मिनट. एंटायर स्क्रीन मैं शेयर करी हूँ. सो उसमें ना क्लॉड में जाएंगे. देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्किल्स. ये रहा. ठीक है. दिस इज प्लेटफॉर्म अवेयरनेस. या तो मैं ब्राउज स्किल्स एक्सप्लोर कर सकती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई वो स्किल है जो मैं चाहती हूँ. वो स्किल नहीं है, ठीक है, हम क्रिएट कर सकते हैं. क्लॉड गिव्स यू दैट फीचर. मैं कह सकती हूँ कि क्रिएट अ स्किल फॉर मी
ये काम मैं कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ क्लॉड को। क्रिएट अ स्किल फॉर मी दैट, बल्कि ये मैंने पूरा बनाया हुआ है कि हाउ टू टेलर योर रेज़्यूमे फॉर जेडी इन 5 मिनट्स। ये पूरा प्रोसेस जो है ये मैंने बनाया हुआ है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? स्टेप 1 में मेकिंग अ मास्टर गूगल डॉक ऑफ एवरीथिंग अबाउट यू। इसमें हम ना सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, हमारी सारी जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, नेम, फ़ोन, ईमेल, लिंक्डइन वगैरह सब इसमें ऐड कर लेंगे और इसको डाउनलोड कर देंगे एज़ अ मार्कडाउन फाइल। रिमेंबर, एज़ अ मार्कडाउन फाइल। ये काम हमने कर लिया, ठीक है? फिर स्टेप 2 होगा डाउनलोड योर प्रेफर्ड रेज़्यूमे में जो भी फॉर्मेट हम चाहते हैं ना कि लेआउट हो रेज़्यूमे का इस तरह, तो मेरा अपना पसंदीदा जो तरीका है रेज़्यूमे स्टाइल का वो ये है। दिस इज़ हाउ आई लाइक माय रेज़्यूमेज़ टू बी। ये अमेरिकन फॉर्मेट है बेसिकली। इट्स लोडिंग। हाँ, दिस इज़ माय रेज़्यूमे और ये मैंने स्किल्स क्रिएट की और ये मुझे रेज़्यूमे बना के जनरेट करके देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ये रेज़्यूमे जनरेट करके दी है ऑन द बेसिस ऑफ माय वर्क एक्सपीरियंस और जो इंस्ट्रक्शंस मैंने क्लॉड को दिए हुए हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन रेज़्यूमे कस्टमाइज़ किया गया है। नाउ ये मैंने सारा क्रिएट कर ठीक है, मैंने ना पीडीएफ फॉर्मेट जिसमें मैं चाहती हूँ वो मैंने डाउनलोड कर दिया और वो भी मैं क्लॉड को दे देती हूँ कि लाइक इस तरह का फॉर्मेट मुझे चाहिए और ये मेरी हिस्ट्री है, सारी इन्फॉर्मेशन है। नाउ मैं क्लॉड के पास जाऊँगी, क्लॉड को कहूँगी कि मैंने यहाँ पर बल्कि ये स्किल बनाया हुआ है। तो मैंने जब ये स्किल बनाया था ना, मैंने कहा था व्हेनेवर वी नीड टू कॉल स्किल ना, तो हमें ये स्लैश बनाना पड़ेगा। लाइक वी हैव टू लाइक ब्रिंग अ स्लैश और जो स्किल बनाया हुआ है उसका नाम लिख लेंगे इस तरह। ये मैंने खुद बनाया हुआ है और ये खुद यू गाइस कैन मेक एज वेल। यू गाइस जस्ट हैव टू राइट क्रिएट अ स्किल दैट डज ऑल ऑफ दिस। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। हम क्लॉड के पास जाएँगे, हम चैट को ओपन करेंगे और इसमें हम ना वो जो 2 फाइल्स हैं अपलोड कर लेंगे और फिर हम कहेंगे वी आर गोइंग टू गिव इट दिस इंस्ट्रक्शन। वी आर गोइंग टू गिव इट दिस इंस्ट्रक्शन कि क्रिएट अ स्किल इन व्हिच यू आर अ रिज्यूमे राइटर एंड ईच टाइम आई से क्रिएट अ रिज्यूमे फॉर मी अकॉर्डिंग टू दिस जेडी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगी, यू विल एनालाइज़ द जेडी एंड एक्सट्रैक्ट द टॉप 7 keywords from the JD and skills and blah blah blah. Basically, ये सारा you guys can like even copy and paste this in your own like जब अगर कोई स्किल बना रहे हो रेज्यूमे कस्टमाइजेशन का, you guys can just make that markdown file. You guys can create that download that PDF file and upload those 2 files and then copy and paste this prompt as well. तो ये prompt डाल करके each time next time when you guys want to create a resume for yourself, you guys can just go to Claude. ये स्किल सेव हो गया, मतलब कि हर बार नई चैट खोलोगे तो ये स्किल वहीं पर रहेगा, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम you guys want to create a customized resume, you guys just can give us slash and then resume customization पे लिख लेना है the name of your skill and then फिर you just need to write create a resume for me according to this JD. वो job description यहाँ पर copy and paste कर लेना है, enter कर लेना है and then it generates you a resume. जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है, मैंने ये स्किल जो मैंने बनाया था उसको यहाँ पर लिंक कर दिया, फिर मैंने कह दिया कि क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर मी अकॉर्डिंग टू दिस जेडी। ये सारा मैंने जेडी कॉपी एंड पेस्ट कर लिया यहाँ पर एंड देन ऑल इट डज इज के मुझे फिर ये फाइल दे दिया। ये सारा काम ना एआई ने किया है। मैंने इसे कॉन्टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिए, वो सारा मेरा काम है और फिर मैंने कह दिया कि और ये सारा जो कस्टमाइज़ेशन वाला काम है ना, वो चैटजीपीटी खुद कर रहा है मेरे लिए, क्लॉड मेरे लिए खुद कर रहा है। ये सारा जनरेट कर लिया है एआई ने, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की थी और उसी इन्फॉर्मेशन को एडिट करके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करके ये सारा ये एआई मुझे वो डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, ठीक है? सो दिस इज़ वन वे, दिस इज़ लाइक व्हाट आई मीन कि लाइक डेलीगेशन कर सकते हैं। सो हियर इट सेज हु शुड डू दिस टास्क। हमने एग्जैक्टली इस एग्जांपल में मैंने कह दिया ना कि लाइक ह्यूमन जजमेंट, लाइक मैंने इसे एग्जैक्टली कह दिया कि जब भी रेज्यूमे बनाओगे, लाइक मैंने इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर लिखे हुए है कि लाइक व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ रेज्यूमे, व्हेनेवर यू क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर मी, इट शुड हैव ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है?
और ये हर एक बुलेट पॉइंट हर एक एक्सपीरियंस के लिए इस हिसाब से हो कि लाइक स्टार फॉर्मेट फॉलो करे कि लाइक मैंने ये सिचुएशन थी, फिर ये मैंने एक्शन किया, फिर उसके बाद ये रिजल्ट आया। इस तरह के फॉर्मेट में मुझे जवाब लाइक रेज्यूमे कस्टमाइज करके दो। तो मैंने जो इंस्ट्रक्शंस है ना जो दे रहे हैं एआई को, उसी पार्ट में ह्यूमन जजमेंट, क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस आता है। और जब भी कोई आउटपुट आ जाता है ना, उसमें फिर से ह्यूमन जजमेंट को इस्तेमाल किया जाता है कि लाइक हाँ ये सही है, लेकिन आई डोंट रिमूव दिस लाइन एंड ऐड दिस लाइन देयर। तो ये भी ह्यूमन जजमेंट में आ रहा है। 70% काम ऑटोमेट हो रहा है, बट 30% ह्यूमन जजमेंट फिर भी ज़रूरत होती है इन चीज़ों में। तो टुगेदर हम काम कर रहे हैं इसमें, ये सारा जो प्रोसेस है इसमें वी वर्क टुगेदर ऑन इट, एंड देन एआई बेसिकली उस रिपेटिटिव और डेटा ड्रिवन मतलब कि रिपेटिटिव काम को हटा रहा है। सो नाउ डेलीगेशन हो गया, हमने एग्जैक्ट डेलीगेट कर दिया वो काम जो एआई करेगा और जो काम मैं कर रही हूँ। वो इंस्ट्रक्शंस बनाने वाला काम मेरा है, और जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का काम है वो एआई का है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द 4D फ्रेमवर्क इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज हाउ टू कम्युनिकेट योर prompt and whatever you want to achieve clearly to AI. So यहाँ पर लिखा हुआ है कि product, what do you want, process, how AI should solve it, performance, how AI should behave. अच्छा, now the thing is that कि ये जो नीचे लिखे हुए ना AI can't read your mind. Yes, AI cannot like अगर कोई काम delegate कर रहे हो, you should be very clear with like the exact instructions that you're giving it. You cannot just say कि मेरे लिए resume create कर लो। किसके लिए resume? AI like तो कुछ भी generate करके देगा ना। So you have to be very clear on the sort of instructions that you're giving. कह दो कि like ये goal है, रेज्यूमे क्रिएट करना है और इस मेथड के थ्रू करना है, ठीक है? ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं ना इन्फॉर्मेशन के, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये ऑल ऑफ दिस इज लाइक डिस्क्रिप्शन। ये मैंने क्लियरली डिटेल में कहा है कि लाइक मेरे लिए रेज्यूमे इस तरह क्रिएट करके दो, यूज दिस ये फॉर्मेट, मतलब कि ये तौर तरीके में लिख के दो, और हर एक बुलेट पॉइंट को ना स्ट्रॉन्ग पास्ट टेंस वर्ब में दो। दिस इज मी गिविंग डिस्क्रिप्शन टू एआई कि लाइक हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसी मेथड के थ्रू करो। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाती हूँ इस तौर तरीके से। दिस इज डिस्क्रिप्शन। ये जो तौर तरीका है ना, यू हैव टू योर सेल्फ एग्जैक्टली टेल इट कि किस प्रोसेस के थ्रू जाना है। सो दिस इज डिस्क्रिप्शन, और ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है ये उसी के रेलिवेंट है। एंड देन वी हैव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई नीड दिस, ठीक है, आई विल रीपोस्ट माई, बल्कि मैं यहाँ पर ही शेयर कर लेती हूँ। एक मिनट। Say, I've shared it in the chat. So, prompt engineering. Prompt engineering is basically कि prompt engineering में होता है कि कितने बेहतर तरीके से instructions दे सकते हो to the chat, ठीक है? Just give me a minute. मैं अपना लैपटॉप जरा प्लग इन करती हूँ। Okay, so prompt engineering in simple terms is कि the better योर इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसके हम कॉन्टेक्स्ट दे, हम लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे ना एक कंटेंट कैलेंडर बना के दो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, एंड वो मुझे तो कुछ भी जनरेट करके दे देगा। इट डज नॉट नो कि किस कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट पोस्ट होगा, किस टॉपिक्स पे बात करनी है। ये सारा कॉन्टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आइदर बाय राइटिंग डाउन दोज इंस्ट्रक्शंस। बहुत लंबा प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, हम गूगल डॉक पे जाएंगे, हम एग्जैक्टली कह देंगे कि दिस इज द कंपनी, और ये कंपनी आई वर्क फॉर एआई डेटा यार्ड ना, तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ एआई डेटा यार्ड का पूरा अबाउट पेज ऑन दैट गूगल डॉक्यूमेंट, एंड आई डाउनलोड दैट फाइल एज अ मार्क डाउन फाइल। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा डॉक्यूमेंट जब भी अपलोड करने हैं ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, तो उसमें ना वो हमेशा मार्क डाउन फाइल्स ही हमेशा अपलोड करने चाहिए। दिस रिड्यूसेस योर टोकन बर्न आउट।
सिंपल एज दैट. सो हम वो सारा कॉन्टेक्स्ट उसे देंगे कि हाँ, दिस इज अ कंपनी दैट आई वर्क फॉर, दिस इज द फाइल फॉर इट, दिस इज माई जॉब डिस्क्रिप्शन, दिस इज द गोल एंड दीज आर द मेथड्स दैट आई वॉन्ट यू टू अचीव दिस गोल. ये सारा कॉन्टेक्स्ट मैं दे रही हूँ उसे, और उसी के बेसिस पे ये मुझे आउटपुट देगा, क्योंकि बिकॉज नाउ ए आई नोज एग्जैक्टली वट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसके पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी मेरे पास है, और ये मुझे आउटपुट जनरेट करके देगा. Now, another way to get better output is by showing examples. अगर मैंने उसे कह दिया है कि give me a report on this, मैंने कंपनी भी दे दिया है कि लाइक इस कंपनी के लिए मैं काम करती हूँ, ये लोगों का काम ये है, मेरी पोजीशन ये है, लेकिन मैं ना इसको एक एडिशनल चीज़ दे दूँ कि लाइक रिपोर्ट इस तरह दिखना चाहिए और इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल चाहिए. मैं एक सैम्पल रिपोर्ट दे दूँगी उसे और कह दूँगी लाइक on the basis of all of this and the sample report that I've given you, generate a new report for me on this thing. तो उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन और जनरेट करके देगा मुझे. नाउ थर्ड इज के स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट्स. स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट्स मतलब कि लाइक लेट्स सी, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ना कि हाउ टू टेलर योर रेज्यूमे फॉर जेडी इन 5 minutes, इसमें हम जा सकते हैं और कह सकते हैं कि कहाँ पर है, मैंने ना क्लियरली ना लिमिटेशंस दे दिए थे कि never use these words in my resume. Leverage, utilize, robust, dynamics, synergy, spearheaded, holistic. Basically, the reason why I gave it these limitations is that कि मैं नहीं चाहती कि मेरे resume पे इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हो, because I have found कि हर एक resume में जो जिसमें इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही हवाई होते हैं, मतलब कि बहुत ही, it does not give a good impression. It sounds as if कि like AI wrote it. So because I do not want my resume to sound like AI wrote it, even though it did write it, मैं बस कह दूंगी कि इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने, because commonly like AI इसी तरह के जवाब देते हो, and I do not want it to sound like that. So constraints भी मैंने दे दिया कि ये चीज़ें नहीं डालने, ठीक है. फिर उसके बाद दिस वन इज इम्पॉर्टेंट एज वेल, ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स. जो भी वर्क फ्लो हो, वर्क फ्लो क्या होता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, राइट. ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये क्लॉड को भी दे देना है कि लाइक स्टेप 1 में ये करो, स्टेप 2 में ये करो, स्टेप 3 में ये करो, एंड स्टेप 4 में ये करो. वंस यू आर डन विद स्टेप 1 देन गो टू अनदर. इस तरह की क्लियरली जब एक्सप्लेनेशन देते हैं ना एआई को, दे आर लाइक बेटर एबल टू लाइक like fully get done with the task. So, and fifth point is ask AI to think first. Yes, now one of the best features of Claude is that के ये लोग normally जब हम कहते हैं ना कि ask, when we tell Claude to ask clarifying questions before you proceed with this task, what it does that कि वो ना loopholes ढूंढने की कोशिश करता है in the workflow that you have, and it makes you think more clearly कि अच्छा हाँ ये सही suggestion नहीं है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं. तो it makes you think कि like इस process को बेहतर कैसे कर सकते हैं. प्रोसेस बेहतर होगा तो आउटपुट बेहतर होगा. इट विल गिव यू एन आउटपुट दैट यू एक्चुअली वांट. सो यू हैव टू, आई विल ऑलवेज एडवाइज कि लाइक बिफोर क्लॉड को कोई टास्क देने से पहले या कुछ भी करने से पहले हमेशा उसे आखिर में प्रॉम्प्ट में लिखा करो कि आस्क मी क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस बिफोर यू प्रोसीड विद दिस टास्क. फिर उसके बाद है कि लास्ट है डिफाइन रोल और टोन. नाउ for me to explain this to you guys, I have to like explain कि AI models, large language models बनते कैसे हैं. Generative AI में जैसे मैंने कहा था ना कि like ये data train होता है और फिर on the basis of its training it predicts कि what is the next thing that you are going to say. So जब हम कहते हैं ना कि like लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है ना, हर चीज़ के बारे में डेटा अवेलेबल है. अगर मैं चाहती हूँ कि लाइक आई कैन गिव इट द ChatGPT द रोल ऑफ के एक्ट एज अ सीनियर कंटेंट क्रिएटर, लाइक समथिंग लाइक दैट, ये वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा जो कि लाइक सीनियर एनालिस्ट, मतलब कि कुछ और कोई और एग्जांपल देती हूँ मैं. एक्ट एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट. तो ये अब क्या करेगा कि जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के इंफॉर्मेशन पे जो ये ट्रेन हुआ है ना, उसी इंफॉर्मेशन को लेगा और उसी की बेसिस और पर्सपेक्टिव से ना वो जवाब देना शुरू करेगा. इफ़ आई, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन में एक वो भी है एग्जाम्पल दी हुई है कि गुड प्रॉम्प्ट. यू आर अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइट अ 5 social media post ideas for a new eco-friendly water bottle launch.
कॉलेज स्टूडेंट्स डोंट फन एंड एंगेजिंग कीप ईच आइडिया अंडर 20 वर्ड्स, ठीक है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमने ना एक रोल इसको असाइन कर दिया कि यू आर अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो ये इंफॉर्मेशन और आउटपुट देगा उसी हिसाब से एज द रोल दैट यू हैव गिवन टू इट। सो इवन अगर हम कह दें कि लाइक एक्ट एज एल्बर्ट आइंस्टाइन टू सॉल्व दिस इशू, तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देगा। यू गाइस हैव टू बी, यू जस्ट लाइक डिपेंड करते हैं कि किस पॉइंट ऑफ क्या रोल दे रहे हो। So, and then furthermore, one another amazing thing you guys can do is that कि prompt को बेहतर करने के लिए ये you guys can always ask AI itself. You guys can ask Claude कि like हाँ इस AI इस prompt को बेहतर और कैसे कर सकते हैं। You guys isn't this just like amazing कि like even weaknesses ढूंढने के लिए भी you guys like AI से ही पूछ रहे हैं कि like हाँ tell me how to make this prompt better. So AI is very cool honestly. So anyways, उसके बाद हम आते हैं AI यूज़ केसेस, रियल एग्जांपल एंड रियल इम्पैक्ट। वही सारी जो चीज़ें मैंने बता दी है, ये उसी की एक्सप्लेनेशन हो रही है। इट्स लाइक टेलिंग यू कि लाइक मार्केटिंग में इट कैन हेल्प यू इन मार्केटिंग, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में, मतलब कि लाइक इट्स एंडलेस, देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद AI. AI in action, it can not only like answer questions, it can also do analysis for you. Excel file उन्हें दे सकते हैं and it can like conduct those analysis जो कि हम Excel पे खुद manually करते हैं, या फिर Excel file को अगर खोल ले उसमें खुद हम Claude को integrate कर सकते हैं। There is this option Excel में कुछ है कि like उसमें साइड में बेसिकली एक्सेल फाइल होगा सारा और साइड में क्लॉड का चैटबॉट है, और इसके साथ हम इंस्ट्रक्शन क्लॉड को दे रहे कि हाँ आई वांट यू टू आइडेंटिफाई द टोटल रेवेन्यू फॉर दिस मंथ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। पहले अगर हमें वो इक्वल टू मैक्स का जो फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता था, we don't even have to do that anymore. Claude is doing it. So even it can help in those analysis, it can help in content generation, image creation as well. Like I forever for me, like जब भी मुझे कोई चीज अगर generate करनी हो, like for I wouldn't need to hire a graphic designer because I'm telling ChatGPT how to do that. Did someone? हाँ, yes, Mohammed, you have a question? मेरा सवाल ये था कि हम जैसे अगर इसको डाटा दे रहे हैं, जैसे आपने बोला इमेज जनरेशन के लिए, सपोज करें हमने पर्सनल इमेजेस वगैरह कुछ दिए हैं, तो ये इनके पास तो बैक एंड में डाटा सेव हो रहा है, तो ये हाँ। रिस्की नहीं होगा हमारे लिए? यस, ये काफ़ी अच्छा सवाल है एंड इसके बेसिस पे मैं बता, डेटा प्राइवेसी इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड इशू आजकल काफ़ी चल रहा है। यूरोप ने तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट कर लिया है डेटा प्राइवेसी के रिलेटेड, और अच्छा, एक सवाल काफ़ी। और था, यस, माजूर मैं बात काट रहा हूँ आपकी, एक जी जी सवाल जी, और कोई था। बात नहीं। इनका फेबिल नाम के कोई वो था मॉडल था, वो बैंक क्यों हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा जान। यस, मैं बताती हूँ। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड। सो क्लॉड ओन करता है एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक इन कंपनी इसने क्लॉड को बनाया हुआ है। तो एंथ्रोपिक ने ना जो यूएस की जो डिफेंस, क्या उनका क्या नाम है, डिफेंस समथिंग कुछ है, बेसिकली उनका जो अपने यूएस मिलिट्री वाले मिलिट्री। जो हाँ, मिलिट्री वही जो है इनकी, तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो भी उनकी है, उन लोगों ने ना वो अपने साथ एक दूसरे के साथ वो बनाए हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे कि लाइक वो लोग अपने काम में क्लाउड को इनकॉर्पोरेट करेंगे और उनके वर्क फ्लोज में ये इन्वॉल्व होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो अब मसला ये था कि एंथ्रोपिक नहीं चाहता था कि जो डेटाबेस, मतलब कि जो सारी इन्फॉर्मेशन हम क्लाउड को दे रहे हैं ना, क्लाउड सिर्फ यूएस में नहीं इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके अपने डेटाबेसेस में अवेलेबल है, इनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो डेटा सेंटर्स इनके पास है वहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि यूएस के डिफेंस सिस्टम के साथ ना, तो वो डेटा तो अब यूएस की डिफेंस वो वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव एक्सेस टू दैट डेटा। मतलब कि मैं यूएस सिटीजन नहीं हूँ, लेकिन वो लोग मुझे मॉनिटर कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेशन क्लाउड के थ्रू उनके पास है। तो अब एंथ्रोपिक के अपने बिलीव्स के हिसाब से वो लोग इस तरह की वो रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते थे एक दूसरे के साथ। एंड मतलब दे डिडंट, एंथ्रोपिक नहीं चाहता था कि वो डेटा जो उन लोगों के पास है वो उनके डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व हो, बिकॉज वो डेटा प्राइवेसी का इशू आता है ना, एज यू सेड। सो उसकी वजह से उनके बीच में काफ़ी मसले हो गए थे। इट वाज लाइक अ होल ड्रामा जो उनके बीच में हुआ था। एंड
वो जो पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री थी उन लोगों की उन लोगों ने सू भी किया, कुछ किया था उन लोगों ने कि एंथ्रोपिक को बेसिकली कह दिया कि आप लोग ना ट्रेटर्स हो टू द गवर्नमेंट बेसिकली, टू यू गाइस आर नॉट पेट्रियोटिक और एनीथिंग लाइक दैट, यू गाइस आर जस्ट ट्रेटर्स। तो अब ये एक बहुत ही पेंटागन, यस 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 यही जो नाम है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज है कि लाइक अगर आप किसी सिटीजन या किसी कंपनी को कह रहे हैं कि आप लोग ट्रेटर्स हो, दिस इज वेरी ऑफेंसिव। तो उन लोगों ने आई थिंक प्राइवेटली कुछ चीज़ें रिजॉल्व कर लिए थे, एंड बिकॉज उस वक्त फेबल नया आया था ना, एंड द होल डिफेंस सिस्टम वाज लाइक सेइंग कि ये काफ़ी एडवांस मॉडल है और लाइक यू नो अदर देन यूएस सिटीजन्स दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन क्या कर देगा, हमारी डिफेंस जो मैकेनिज्म है इट इज़ ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग। तो उसकी वजह से दे हैड टू लाइक यू नो गेट रिड ऑफ द फेबल फॉर सम टाइम कि इस इशू को रिजॉल्व करे। इट इज़ मोर और लेस ऑफ डेटा प्राइवेसी का ही इशू है। एंथ्रोपिक नहीं चाहता कि वो डेटा दे दे यूएस गवर्नमेंट को, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट के एजेंडास कुछ और है और एंथ्रोपिक के एजेंडास कुछ और ही है। सो हाँ, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड, एंड डेटा प्राइवेसी इज़ अ वेरी बिग इशू और हर चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन it's not like you have to look at yourself as well. How important even are you? Like, I mean, why would US government want to target me? Like, मैंने क्या ही उनके against कर लेना है? तो मैं इस नज़रिए से देखने की कोशिश करती हूँ कि like US गवर्नमेंट मेरा क्या ही उखाड़ लेगी, मैं उनका क्या उखाड़ लूंगी, बल्कि सो इसलिए आई डोंट रियली थिंक ऑफ इट एज अ इसमें एक बिग सवाल थिंग। और भी है, जी जैसे जी कि आपने बोला यूएस गवर्नमेंट आपको क्या, यूएस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो बड़ा बड़ा, या लेकिन इन दी केस इन फ्यूचर इंश्योरेंस से आप बहुत तरक्की करते हैं, तो एक पर्पस में आपका बहुत नाम हो जाता है, तो ये तब आपके लिए ये जो अभी आपने जो इनपुट दी है क्लाउड में डाटा सेव करवाया तब ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा आपके लिए? सॉरी मुझे समझ नहीं आया आपके सवाल की। जैसे भी आपने बोला ना कि आपकी यूएस गवर्नमेंट को अभी आपकी आइडेंटिटी नहीं मालूम है, अभी आपको कोई इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता है हिंदी नॉर्मल उस पर, सही है, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब आपको बहुत लोग जानेंगे तब आप इन्फ्लुएंसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, आप साइबर सिक्योरिटी की साइड पे आप बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, या कुछ भी आपकी जो भी फील्ड है उससे बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, आपका एक नाम हो जाएगा, तब ये आपका डाटा जो अभी आपने प्रोवाइड करा होगा क्लाउड में डेटाबेस में जो सेव होगा तब ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं साबित हो सकता। अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस तरह हो सकता है, एंड टू बी ऑनेस्ट जिस तरफ पूरी दुनिया जा रही है, हर कोई बहुत ही हाइपर सर्वेल होगा, मतलब कि गवर्नमेंट है उसके बाद उस उनका ना उनके पास आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और बात ये कि लाइक इवन पाकिस्तान में भी देख लो, पहले हम क्रेडिट कार्ड्स और लाइक यू नो डेबिट कार्ड इस्तेमाल वगैरह नहीं करते थे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट शैडो इकोनॉमी को एक लाइक यू नो बाहर लेकर आना चाहती है, वो लोग रेगुलेट करना चाहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तभी बना पाते हैं कि जब वो गवर्नमेंट खुद देख पा रही होती है लोगों को कि वो किस तरह काम कर रहा है। तो वो पूरा सिस्टम ही सोसाइटीज़ का पूरी दुनिया में ऐसा बन रहा है कि वो गवर्नमेंट देख पा रही है कि लाइक ये सारा काम हो रहा है, और इसलिए हमें भी इंसेंटिवाइज़ किया जाता है कि अगर हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमारा टैक्स कम लगेगा। तो इवेंचुअली लोग रेडार के अंदर आ रहे हैं, गवर्नमेंट के रेडार के अंदर। और ये भी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये भी तो डेटा, इसमें भी डेटा है ना, तो जिस तरफ हमारी दुनिया चल रही है ना, उस हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी। इवन जो हेल्थ केयर सिस्टम भी हमारा है, हमारा जो सहूलत कार्ड है या जो भी है, वो भी तो ऑनलाइन सारा हो रहा है ना। जैसे ही चीज़ें और प्रोसेसेस ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रही है, हमारा सारी इंफॉर्मेशन भी उसी तरह ट्रांसफ़र हो रही है मतलब कि इट इज़ विजिबल टू द गवर्नमेंट कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो अगर सोसाइटी में पार्ट टेक करना है, तो यू हैव टू लाइक प्रोवाइड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये सारा डेटा अपने बारे में देना पड़ता है। अच्छा, तो इसको हम अगर पैरेलल में रखें यानी इनविजिबल मोड में अगर रखें, जैसे आपने अपना डेटा प्रोवाइड करा है तरह से, यहाँ वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमने बैंकिंग का डाटा जो होता है वो अगर आप देखें जैसे नॉर्मली अगर आपने जेट कैश और इजी पैसे की ऐप चलाई हो तो उनमें तो कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी लगा के आप डाटा निकाल सकते हैं, लेकिन यस बैंकिंग की आपने अगर साइट्स वगैरह देखी भी हो तो उनकी साइट बहुत बेकार होती है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। उसके ब्याफ में अगर हम
पैरेलल में काम Excuse करें, me. जैसे हम इनको एक्चुअल डेटा ना दें इनको अपना। Excuse me, Umar. Whoever is having questions may keep to themselves and ask at the end of the webinar after Ms. Zainab has completed. Okay. Thank you. सही। Okay, so yes, AI in action, ये सारा कुछ हमने कर लिया. We're gonna move to the next slide अब. सो AI के एथिक्स के बारे में हम बात करते हैं. तो AI बेसिकली अगर हम अपने काम में AI को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो हमें काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि AI ने कौन सा काम किया और हमने कौन सा काम किया है. वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर मैनेजर्स या फिर जो भी है कि लाइक AI ने ये सारा काम किया और मैंने ये काम किया है. बी फेयर कि लाइक और डोंट यूज़ AI टू डिस्क्रिमिनेट और स्टीरियोटाइप. ये जिस डेटा पे ये जो LLMs बने हुए हैं ना उसके बेसिस पे हमारी हिस्ट्री में लाइक जो डेटा है, हाँ इट्स ह्यूमन डेटा ना आखिर में, और हमारे अपने बाइसेस और स्टीरियोटाइप्स होते हैं. तो जो इंसानों की मेजॉरिटी में स्टीरियोटाइप्स और बाइसेस है वो उसी के हिसाब से जवाब देगा. सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि लाइक जो भी आउटपुट आ रहा है वो ना डिस्क्रिमिनेट और स्टीरियोटाइप में ना प्ले नहीं कर रखे. जैसे कि कह सकते हैं कि पाकिस्तानीज आर ऑल टेररिस्ट व्हेन दैट इज नॉट ट्रू. वी हैव टू टेक दिस बायस इनटू कंसिडरेशन कि अगर कोई इस तरह जवाब दे रहा है वी हैव टू करेक्ट दैट. And then we have to like focus on protect privacy as well. पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए, स्पेशली कंपनीज के जैसे कि फाइनेंशियल डेटा है कंपनी का वो नहीं शेयर करना चाहिए. हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि लाइक जहाँ पर AI कंटेंट इस्तेमाल किया है दूसरों की, हाँ जहाँ पर दूसरों ने कंट्रीब्यूट किया प्रोजेक्ट्स में उनको भी प्रॉपरली लाइक क्रेडिट देना चाहिए और स्टे अकाउंटेबल. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर AI आउटपुट्स एंड देयर इम्पैक्ट एज वेल. कि AI का जो आउटपुट है और इम्पैक्ट है उसका कॉन्सिक्वेंस आप ही फेस कर रहे हैं कि लाइक जो भी काम किया है उसके उसका जो रिजल्ट है यू हैव टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. गलत है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है वो भी आपकी लाइक आप पे है. सो हमेशा AI को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए कि AI को पर्पस के साथ हो. इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करो. डोंट ऑलवेज ट्रस्ट द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. कीप लर्निंग एंड क्वेश्चनिंग. जो आउटपुट देता है उसको अपने दिमागी तौर पे जो सही और गलत लगता है उसी हिसाब से लाइक एनालाइज के लाइक ये आउटपुट सही है या गलत है. दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए. ट्रस्ट और इंटेग्रिटी इन एवरीथिंग. हाँ, प्रॉम्प्ट करने से पहले यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है इज इट करेक्ट, इज इट एथिकल और इज इट हेल्पफुल. हमेशा like we have to always take these things into consideration. Now this is human judgment. ठीक है, हम 70% काम AI से करा सकते हैं लेकिन जो 30% काम रहता है ना वो human judgment का है, जो जिसमें आता है कि ये सही है, ये ethical है, ये helpful है. ये सारे factors हमें खुद सोचने पड़ते हैं. सो प्रॉम्प्टिंग की ऑलरेडी हमने टेक्निक्स डिस्कस कर लिया है कि स्पेसिफिक होना है, कॉन्टेक्स्ट देना है, फॉर्मेट वगैरह. सेट कंस्ट्रेंट्स, इटरेट एंड रिफाइन, रिव्यू एंड वेरीफाई. द एनाटॉमी ऑफ अ ग्रेट. हाँ, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग भी काफ़ी कॉमन है कि लाइक हमने रोल दिया है कि लाइक यस ये डू इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ सीनियर एनालिस्ट एंड डू दिस टास्क. क्लियरली गोल बताया है कि है क्या, किस मेथड के थ्रू गोल बी पे जाना है हमें. Or yes, basically as detailed your instructions can be, the better it is, the better your product is going to be. And prompt workflow. This is something you guys can like take a note of as well कि like from idea to answer goal clear होना चाहिए, context सारा देना चाहिए. आउटपुट जो भी आता है उसको और भी बेहतर करा सकते हैं बाय गिविंग इट इंस्ट्रक्शंस के लाइक इस चीज़ को हटाओ, इस चीज़ को ऐड करो, इस चीज़ के बारे में बात करो. एंड जो यहाँ पर लिखा है ना कि बेटर द प्रॉम्प्ट्स, ग्रेटर द कॉन्वर्सेशन एंड ग्रेटर द रिजल्ट्स. और आखिर में हमारे पास है टॉप AI टूल्स. चैट GPT है हमारे पास, गूगल जेमिनाई है, नोशन AI भी है, कैनवा AI है, ऑटर AI है. जो एग्जांपल मैंने दी थी रेज्यूमे ऑटोमेशन की वो मैंने कॉन्टेक्स्ट में दी, क्लॉड के कॉन्टेक्स्ट में दी है. सो यू गाइस कैन सी चैट GPT इज गुड फॉर राइटिंग आइडियाज, लर्निंग, कोडिंग. Gemini is good for summaries, Google Workspace, Notion is good for note-taking docs, and the AI productivity workflow. Define करना है कि goal क्या है,
इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर उसके बाद वर्ड्स में लिखना है, फिर जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको और रिफाइन करना है कि उसको बेहतर और कैसे कर सकते हैं, एंड देन यू शेयर इट विद योर मैनेजर और हुएवर इज आस्किंग फॉर इट. एंड AI लिटरेसी में वही सारा है जो 4D फ्रेमवर्क मैंने कहा था ना कि एक मिनट, डेलीगेशन, टास्क देना, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टेक्स्ट देना, डिसर्नमेंट, ह्यूमन जजमेंट जिसकी बात की थी, डिलिजेंस इज हाउ टू यूज AI एथिकली. सो इन सारे 4 पॉइंट्स की कॉन्वर्सेशन हो गई एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड. High value skills in the age of AI: critical thinking, analyze questions, make smart decisions, creativity को इस्तेमाल करना है, generating new ideas, new unique solutions. How to communication is very important now. You have to be like very good at storytelling and telling people मतलब के how to convey ideas to people. Emotional intelligence, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, you need to be understanding of, especially if you're a reader, you need to be understanding of के like हाँ इस इंडिविजुअल से ये काम होगा, उस इंडिविजुअल से ये काम होगा, ये इंडिविजुअल कितना काम हैंडल कर सकता है. अडेप्टेबिलिटी, ये जो सारा AI हमारे पास है, हर महीने नया मॉडल इंट्रोड्यूस हो रहा है और इन चीज़ों को अडेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिजिटल फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन AI को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. AI इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एवरी करियर, दिस इज़ वेरी ट्रू. हेल्थ केयर भी चेंज हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है, एजुकेशन, डिज़ाइन एंड मीडिया एंड एवरीथिंग. जो वर्क फ्लो मतलब कि जो करियर्स अभी चेंज नहीं हो रहे हैं वो करियर्स है जो जिसमें हाथों का इस्तेमाल किया जा रहा है. जैसे कि आई मीन ट्रेड काम क्या होता है? ट्रेड काम वही होता है ना जिसमें मजदूरी की जाती है कि लाइक कंस्ट्रक्शन करना, या इफ यूर अ ब्यूटिशियन लाइक मेकअप कराना किसी और के ऊपर, वो तो मशीन ही कर सकता ना. या फिर नेल टेक बनना, नेल्स पेंट करना, वो भी इंसान ही कर सकता है. सो लिटरली हर एक इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं एंड adoption, like if you guys can start adopting AI into your work from now on, it is going to be helpful for you guys in the long run. And AI myths and facts कि like AI will take all jobs. AI is not taking jobs, they are changing jobs. मतलब कि पहले काम किसी और तरीके से होता था, अब किसी और तरीके से होता है और नए जॉब्स इस तरह और भी आएंगे. AI is always 100% accurate. This is not true. AI के जो information है, you always need to verify कि information सही दी गई है या नहीं. You don't need to be a tech expert to understand AI and how to incorporate it into your own work. You just have to be curious and learn more. Adaptable होना है. AI is unbiased and neutral. That is false. AI biased है और neutral नहीं होता हमेशा, क्योंकि ये models train हुए हैं on the basis of human data और human data biased ही है. AI complicated नहीं है. You just need to start doing your own small projects. जैसे मैंने वो resume automation का किया था, ये actual एक मसला था मेरे ज़िंदगी में और मैंने इसको automate करवाया है AI से. And हाँ, you plus AI, limitless possibilities. Like frankly speaking, there's like so much everyone can do, and it just depends on how you guys do it. Is all. This was my presentation. I will share the slides as well, and also जो resume automation के related है वो मैं repost कर लूँगी अपने LinkedIn account पे. Thank Oh you yeah. so much, Zainab, for such an informative and engaging session. Your practical demonstration and clear explanation made the concepts so much easier to understand, and I'm pretty sure that everyone has gained valuable insights into using Claude AI more effectively. We'll now move into the Q&A session, and if anyone is having questions, feel free to drop them in the chat. हाँ, if anyone has any questions तो पूछ लें. Yes, Imad. जी अस्सलाम वालेकुम. जब आप वालेकुम कुछ देर अस्सलाम. पहले बात कर रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो करेंसीज वगैरह को डाटाफाई करना चाह रही हैं दुनिया भर में, तो उसका इम्पैक्ट मैं ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहा हूँ. अच्छा, उससे मुझे एक सवाल ये आता है कि आप एआई और डाटा की सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं, इनके इम्पैक्ट्स ह्यूमन सिक्योरिटी पे क्या हो सकते हैं, इसका कुछ कॉन्सेप्ट हमें दे सकती हैं, और कॉन्सेप्ट देने के बाद जितनी मिसालें इसकी दे सकती हैं वो दे दीजिएगा. शुक्रिया. सही.
So what I understand, what your question is कि like data security का impact इंसानों पे क्या हो सकता है data जी privacy यूं के समझ लें, related. डेटा, एआई और साइबर सिक्योरिटी, मैं थोड़ा सा और डोमेन को बड़ा कर रहा हूँ, इन 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 ये इन इन तीन सिक्योरिटीज के ह्यूमन सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट इसका हम कैसे समझें, और उसके बाद जो है वो एग्जांपल्स क्या हैं इसकी। आप ज़रा बता सकते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या मतलब, फिजिकल सिक्योरिटी या फिर कुछ और, कुछ इस तरह? असल आई में एम चलो मैं सॉरी, आई आपको सच स्टिल डोंट बता अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सही है, सही है। अब मैं आपको सच बताता हूँ कि मुझे जो है वो, मैं खुद साइबर सिक्योरिटी और एआई का एक्सपर्ट हूँ। मेरी जो बेसिक फील्ड है, पीएचडी मेरी एआई में है, और साइबर सिक्योरिटी मैंने मतलब वैसे शौक था तो सीख ली काफ़ी। लेकिन अब हुआ ये है कि मुझे जो है वो एक टॉक देनी है संडे को। उन्होंने कह दिया कि ह्यूमन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी और एआई सिक्योरिटी के आपस में क्या ताल्लुक है। तो मैं आपसे अच्छा. इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आइडियाज़ लेने के लिए सिर्फ, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने जिक्र सही. किया ये एग्जांपल जो है ना करेंसी वाली, ये डायरेक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी पे असरअंदाज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में जा रही हैं चीज़ें, और उसके बाद वो किसी का भी सही. नात का कभी भी चाहे बंद कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। सही है. टू. ठीक है. आई सही. अंडरस्टैंड कि ये मुश्किल मैं सवाल है, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा जहन में तो कोई बात नहीं। नहीं, मतलब कि लाइक काफ़ी ओपन एंडेड किस्म का है, तो इसीलिए मैं एक पॉइंट लाइक जिस पे एक्सप्लेनेशन मैं दे पाऊँ तो वो सोच रही हूँ. सही है. तो पहले तो इम्पैक्ट क्या आएगा. सही. तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा गवर्नमेंट इकोनॉमी को शैडो इकोनॉमी, मतलब कि शैडो इकोनॉमी वो होती है जिसमें आप रजिस्टर नहीं कर पाते कि लाइक कौन किसके साथ किस चीज़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है. मतलब कि हमें कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है. ठीक है. और गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारी चीज़ें रेगुलेट करे ताकि इकोनॉमी को बेहतर करा पाए. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज किए आइडियाज़ के जो लोग क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको टैक्स कम, मतलब कि उन पे टैक्स कम चार्ज होगा, 15 से 5% होगा सिर्फ. एंड द रीज़न इज़ वाई कि जब लोग ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ऑनलाइन कर पा रहे हैं, तो वो अब ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो रहे हैं बैंक्स में. ठीक है. और वो बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स है, वो अब गवर्नमेंट भी देख पा रही है कि हाँ, इन कमर्शियल बैंक से जो डेटा आ रहा है वो अब गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि अब पता चल रहा है कि अब पैसा हमारा जो है इकोनॉमी में कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, और उसको बैलेंस आउट कैसे करें. तो ये जो सारा डेटा था ना ट्रांजैक्शंस का, वो अब शैडो से अनशैडो एरिया में आ रहा है टू रेगुलेट. टू गवर्नमेंट का मेन गोल क्या होता है, टू लुक फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन, राइट. वो अलग बात है कि प्रैक्टिकलिटी में उस लिहाज से नहीं सोच रहे, लेकिन थियोरेटिकली उस लिहाज से सिटीजन्स की महफूजी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं ना, कि ताकि रेगुलेशंस बने और उनकी रूल्स बेहतर बनाए और सारे के पास पैसा इक्वली हो. तो अगर हम इस लिहाज से सोचें कि गवर्नमेंट हमारा डेटा उस लिहाज से यूटिलाइज़ कर रही है, तो ये हमारी बेहतरी में है और हम विलिंग है वो डेटा शेयर करने के लिए. लेकिन अब इन प्रैक्टिकलिटी गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग दैट. तो कुल इस लोग इसीलिए ना शैडो इकोनॉमी में काम करते हैं कि लाइक गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट को पता ना चले कि लाइक हम क्या काम करें, किस तरफ पैसे कमा रहे हैं. सो हमें ज़्यादातर देखना पड़ता है कि डेटा है किसके पास, किस लाइक लुक इट फ्रॉम दोज पीपल्स परस्पेक्टिव. जो जिनके पास डेटा है उन लोगों के पास उनको पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, और उसी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो लोग हमारे लिए डिसीजंस बना पाएंगे. तो हमें देखना है कि जिसके पास डेटा है वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है. अगर अच्छा इंसान है तो वो हमारी वेलबींग के लिए कर रहा है, बुरा इंसान है तो हमारे वेलबींग के लिए नहीं कर रहा. सो लुक इट फ्रॉम मे बी दिस परस्पेक्टिव कि एंथ्रोपिक हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहा है या फिर यूएस गवर्नमेंट की जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है. सो मे बी लुक इट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, तो हमें पता चलता है कि लाइक हाँ, ये लोग इफ इट्स लाइक डेंजरस फॉर अस और नहीं. या आई थिंक दैट्स माय आंसर. यस इमाद. बहुत बहुत शुक्रिया। No problem. Does anyone else have any other question?
If anyone is having any question, they can unmute or drop them in the chat box. Acha, so AI systems can be hacked, which is cyber security risk, and those AI systems, if linked to human, then it also can risk human security. That is why human in the loop is recommended. हाँ, that is definitely a good point of view. AI systems hack हो सकते हैं, and और क्या AI automation का session आप AI data yard में कब start करेंगे? AI ऑटोमेशन पे मैं भी कर सकती हूँ, एंड देयर इज समवन एल्स एज वेल जो कि मुझसे बेहतर इन चीज़ों में है, वो भी कर सकता है। आई विल कन्वे दिस टू माय मैनेजर और फिर हम एक सेशन अरेंज कर सकते हैं। एआई सिस्टम्स, अच्छा द प्रीवियस क्वेश्चन, यस एआई सिस्टम्स कैन बी हैक्ड, आई मीन एवरीथिंग कैन बी हैक्ड अगर साइबर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है उस चीज़ की। एंड या लाइक इवन एंथ्रोपिक ने भी एक मॉडल रिलीज किया था, मैं नाम भूल गई, बट आई थिंक इट वाज कॉल्ड, what was it called? Let me see. माइथोस और फेबल। यस यस मिथोस वगैरह, यस मिथोस नाम है। एंड उन लोगों ने तो, मुझे तो लगता है कि, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो एक, क्या कहते हैं, कि वो एक मार्केटिंग मिमिक है, एंड इट्स नॉट एक्चुअली एज इफेक्टिव एज दे आर सेइंग इट। एंड इवन शुरू में जब आया था, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट थॉट कि वो कमर्शियली सारों के लिए अवेलेबल है, इवन तो इट वाज जस्ट अवेलेबल फॉर द कंपनीज जिनके साथ उन लोगों ने पार्टनरशिप्स किए हैं। सो आई थिंक इट्स मे बी अ बिट ऑफ लाइक अ मार्केटिंग गिमिक एज वेल। वो लोग अपने शेयर्स ज़्यादा करना चाहते हैं, दे वांट पीपल टू बाय देयर शेयर्स ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है अपनी मार्केटिंग जितनी खतरनाक कर सकते हैं वो लोग करेंगे। डोंट ऑलवेज ट्रस्ट दीज कंपनीज। ये लोग हमेशा कभी कभार कुछ चीज़ें काफ़ी ऊपर करके बोलते हैं, जबकि वो इतने भी एडवांस नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डीएस आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग claude.md and what are the best practices for setting up Claude? अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि, ठीक है, क्लॉड में ना एक फीचर है कॉल्ड प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स टॉपिक्स या फिर सेपरेट रखना चाहते हैं ना प्रोजेक्ट्स को, लाइक इस प्रोजेक्ट में इस पे काम करें और इस प्रोजेक्ट में इस पे काम करें, सो जस्ट यूज देयर प्रोजेक्ट्स फीचर। उसमें ना यू डोंट हैव टू ऑलवेज अपलोड फाइल्स, इंस्ट्रक्शंस भी एक बार दे दो तो वो उसी को ही फॉलो करता है और काम करता है। लाइक एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट्स वाला फीचर क्लॉड में, इट्स प्रिटी गुड। And the question is, so I am a student right now and finding a solution for making education ecosystem better. Can we follow on LinkedIn? I would be very, हाँ, मैं अपना even LinkedIn भी share कर लेती हूँ। And एक मिनट, you guys can connect with me there as well. Acha, see, I am a BCS student for my final year project. I want to work in the AI and cybersecurity domain. I want to ask how AI is actually used in cybersecurity in the real world and what kind of problems would make a good FYP. Acha, so my background is not in cybersecurity, lekin AI Data Yard does help out with FYP. So this is something that I can convey this message to my manager, and then we can discuss it further. But it is your responsibility to follow up. कि like पूछो कि like क्या ही हो सकता है इसके ऊपर. But even like अगर ideas generate करना है, you guys can generate ideas with the help of Claude. You guys can give these exact problems to it and back and forth conversation करके ideas generate कर सकते हैं. Yes, Imad. Yes, Imad, you can ask. सॉरी, मेरा हाथ रेज हुआ था क्या? जी, अच्छा, सॉरी। अच्छा, नहीं, अगर कोई और नहीं है तो कोई बात गलती से रेज हुआ, लेकिन अगर कोई और नहीं है तो मैं पूछ लेता हूँ एक और सवाल। जी अ, जी. आप एक स्किल्स ए ट्रॉफी का आपको अंदाजा है कुछ? Skills atrophy. जी, इसका मतलब बेसिकली ये है, चलें टर्मिनोलॉजी छोड़ें, कि आप अपनी स्किल्स लूज़ करना शुरू कर देते हैं अगर आप एआई यूज़ करते हैं तो। तो स्किल्स लूज करना, अगर यूज़ करना। स्किल लूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक जी। है। वेल, लूज करना क्यों शुरू कर रहे हैं आखिर में? क्योंकि उस स्किल को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा ना। तो अगर इस्तेमाल किया नहीं जा रहा तो
एक तो ये वजह हो सकती है कि उस स्किल की अब कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी स्किल्स ख़त्म हो रही है। मतलब कि इट डज़न्ट मैटर एनीमोर, लाइक इवन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तो इसमें इतना ज़्यादा काम होता था हाथ के थ्रू, और उसके बाद रिप्लेसमेंट आई, ऑटोमेशन, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू हो गया तो मैस प्रोडक्शन शुरू हो गई, पुरानी स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी एनीमोर। तो जो स्किल्स लूज़ हो रहे हैं तो मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है ना, उसकी उनकी अहमियत नहीं है और उनके पैसे नहीं मिल रहे। सो व्हाई वुड यू वांट टू कंटिन्यू स्टिकिंग टू ओल्ड स्किल्स? श्योर फॉर लाइक हिस्टोरिकल रीजंस यू माइट वांट टू, बट लाइक मॉनेटरी टर्म्स में अगर मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है उस स्किल की तो फॉरगेट इट एंड लर्न अ न्यू स्किल जिसमें जिसकी अहमियत है। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है आपने, डिफरेंट थिंकिंग, क्योंकि आज तक जब भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ है लोग कहते हैं कि हम स्पेलिंग मिस्टेक करना शुरू हो गए हैं और हम जो है वो मतलब कोडर्स जो है वो कोड लिखना भूलना शुरू हो गए हैं। बट आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज नॉट अ बैड आइडिया कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर फिक्र ही नहीं करो। हाँ, आई मीन अगर पैसे उस स्किल के नहीं मिल रहे तो क्या फ़ायदा? लर्न समथिंग एल्स जिसके पैसे मिल रहे हैं। आखिर में हर कोई काम करता है तो पैसों के लिए फॉर द मोस्ट पार्ट कर रहा होता है ना, हर कोई कुछ। तो हाँ, नहीं, इसका जिसके तरीका ये भी पैसे मिल सोचने रहे का हैं है वही कि करो। जी, अगर पैसों को हटा भी दें तो हुँ, प्रॉब्ली राइटिंग, अगर आप स्पेलिंग भूल रहे हैं तो प्रॉब्ली राइटिंग इज नॉट अ ह्यूमन एक्टिविटी एनीमोर। हाँ, इट्स नॉट फेयर। और अगर आप वो कर रहे हैं तो वो यू आर डूइंग इट फॉर अदर रीज़न्स, मतलब अगर इफ इट हेल्प्स यू थिंक बेटर तो आप उसके लिए कर रहे हैं। यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ बेटर थिंकिंग मे बी। सो या अगर किसी और के पास और सवाल हो। I suppose that we're done with the Q&A session. And as we wrap up today's webinar, I'd like to extend our sincere thanks to Ms. Zainab Ali for sharing her valuable knowledge and practical insights with us. We also appreciate everyone who joined and actively participated in today's session. Your enthusiasm made this webinar even more engaging. We hope you found today's session informative and that it inspires you to continue exploring AI with confidence. Don't forget to stay connected with @IEEE.zu on Instagram and IEEE Zawdeen University on LinkedIn for updates of our upcoming events. Thank you so much, everyone who attended this session. Allah Hafiz. Hafiz, take care everyone.